پڑھنا ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے ایک مبارک رات آئی، مبارک گھڑی آئی کہ ہم نے بیک وقت کتنے علماء کے چہروں کی زیارت کی، بے شک سبحان اللہ، اور اس پر برتری یہ کہ ہم نے ایک بہترین پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، بہترین عالم دین، ایک آل رسول کے چہرے کی زیارت کی۔ ایک کتاب مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے جس کتاب کا نام ہے منہاج العابدین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے منہاج العابدین۔ بڑے غور سے سنیے گا کیونکہ جو آپ کو ہنسنا تھا ہنس چکے، اب کچھ لیجئے۔ بے شک وہ ماحول کچھ اور تھا، یہ ماحول کچھ اور تھا۔ ایک آل رسول کے سامنے کچھ لے کر جائے۔ بے شک امام غزالی نے منہاج العابدین الحمدللہ پڑھا بھی ہے، پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے، پڑھانے کا بھی شرف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث منہاج العابدین کے پہلے ہی پیج میں ہے، پہلے ہی صفحے میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ من صیامها و قیامها۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عالم کو دیکھنا، بے شک عالم کو دیکھنا میرے نزدیک، نبی فرماتے ہیں عالم کو دیکھنا میرے نزدیک ایک سال کی نفل نماز اور ایک سال کے نفل روزہ سے بہتر ہے عالم کو دیکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وہ عالم میرے جیسا عالم نہیں، وہ عالم میرے جیسا عالم نہیں، وہ عالم حضرت کے جیسے۔ واہ بھائی واہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کیونکہ آج ہم جو اپنے طبقے کو دیکھتے ہیں، اپنے گروہ کو دیکھتے ہیں، اپنی جماعت کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، لیکن جب ایسی ہستیاں سامنے آتی ہے تب جا کر کے سمجھ میں آتا ہے جو نبی نے فرمایا ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ شکیل جیسا عالم نہیں، سید فاروق جیسا عالم۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اگر حدیث کا صحیح مصداق دیکھنا ہے تو ہر عالم نہیں، ایسے علماء ہیں اس حدیث کے مصداق، ایسے علماء ہیں نبی کے فرمان کے شان کے مطابق نبی نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، وہ میرے جیسے نہیں، ایسے علماء وارث رسول سبحان اللہ۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے اذان ہو رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، عالم صاحب گفت و شنید میں لگے ہوئے ہیں، اپنے پرچار میں لگے ہوئے ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر عالم کی بات نہیں ہے، وہ عالم جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کون سے علماء ہیں؟ انہی علماء کو علماء حق کہا جاتا ہے، انہی علماء کو علماء حق کہا جاتا ہے۔ اور سن لیں، یہ مشترکہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، ہم کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نا جی، بہت سے مرید ہیں یہاں پہ نا حضرت، تو پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، جتنے بھی پیر ہیں شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، ہماری نظروں میں سبھی کے سبھی قابل تعظیم ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم حضرت کے مرید ہیں تو دوسرے پیروں کی برائی کر دیں، قطعی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں جس پیر کے سامنے دوسروں پیروں کی برائی کی جائے وہ پیر بھی پیر کہلانے کے لائق نہیں۔ واہ بھائی واہ، حق ہے بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلاسل بہت ہیں، اور جتنے سلاسل حقہ ہیں سب حق ہیں، بے شک سب حق ہیں، اور سب کا سلسلہ وہی جا کے ملتا ہے، سب کا سلسلہ وہی جاتا ہے، سب کا راستہ وہی
जाता है, जिस रास्ते को रास्ते कादरिया कहा जाता है। हर आदमी ने अपना अपना रास्ता चुन लिया है। कोई रास्ते कादरिया है, कोई रास्ते चिश्तिया है, कोई रास्ते अशरफिया है, कोई रास्ते निजामिया है, कोई रास्ते बरकातिया है, कोई रास्ते हसनिया है, कोई रास्ते निजामिया है, कोई रास्ते हशमतिया है, कोई रास्ते नईमिया है। ये जितने रास्ते हैं, ये सब रास्ते मुस्तफा जाने रहमत पे जाते हैं। और जो उस रास्ते से लग गया, मुस्तफा से उसका कनेक्शन जुड़ गया, और जिसका कनेक्शन नबी से जुड़ा, नबी से जुड़ा, हदीस कहती है, कुरान की आयत कहती है, जिसने अपना ताल्लुक नबी से जोड़ लिया, जहाँ जहाँ नबी होंगे पीछे पीछे गुलाम। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीका, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी कारी शकील अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हमने अपना हाथ पीर के हाथ में दिया है कि नहीं? हुजूर मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, आओ आओ हो जाओ मुरीद। हजरत ने हाथ दिया या रुमाल दिया? हाथ दिया या? बहुत लोग होते हैं रुमाल फैला दिया जाता है कि नहीं? हम अपने घरों में बिजली लेते हैं तो डायरेक्ट पावर हाउस से लेते हैं। सुनिए, बहुत समझ के सोचिएगा। तो पावर हाउस से अगर डायरेक्ट 11,000 तार में अगर हम बल्ब लगा देंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उसके पावर को कम करके ट्रांसफार्मर के जरिए हम पावर को कम करके अपने घरों में लाते हैं, डायरेक्ट नहीं लेते। अब किसी अल्लाह वाले ने अपना हाथ दिया या हाथ में रुमाल पकड़ कर दिया, लो इसको अपने हाथ में पकड़ लो। हुजूर ने अपना मुरीद कर लिया। अब सुने, रवायतों में आता है हजरत अनस बड़े सहाबी हैं, ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि 10 साल तक नबी की खिदमत की है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे उनका वुरूद मसऊद हुआ। मेरे आका मेरे घर आए, दस्तरखान गंदा था। मैंने सोचा दस्तरखान को धुल दिया जाए, लेकिन अभी अगर पानी से धुलेंगे तो जल्दी सूखेगा नहीं। आका खाना कहाँ खाएंगे, तनाउल किस पे करेंगे? हजरत अनस कहते हैं, मैंने वो दस्तरखान लिया है और आग जल रही थी, तन्नूर जल रहा था, दस्तरखान को लिया, तन्नूर में डाल दिया। किस लिए? गंदगी को साफ करने के लिए, किस लिए? मैल को साफ करने के लिए। हजरत अनस ने अपना दस्तरखान तन्नूर के अंदर डाल दिया, कुछ देर के बाद निकाल लिया, कुछ देर के बाद निकाल लिया। दस्तरखान बिल्कुल चमक रहा है, दस्तरखान बिल्कुल साफ है। नबी फरमाते हैं, अनस क्या कर रहे हो? कहा मेरे आका मैं दस्तरखान को साफ कर रहा हूँ। कहा कैसे? कहा मेरे आका मैंने पानी से नहीं धुला, कपड़े से नहीं साफ किया, उस दस्तरखान को आग के अंदर डाल दिया। कहा अनस क्या तुम्हें पता नहीं है आग का काम है जलाना, आग में डालोगे तो दस्तरखान जल जाएगा, आग उसे जलाकर राख कर देगी। हजरत अनस कहते हैं, मेरे आका पता है आग का काम है जलाना, आग का काम है राख बनाना, आग का काम है उसे भस्म कर देना, लेकिन मेरे आका ये किसी वहाबी का अकीदा नहीं, एक सहाबी का अकीदा है, एक सहाबी का अकीदा है। हजरत अनस कहते हैं, मेरे आका मैंने एक बार देखा था कि आपने इसी दस्तरखान से अपने उंगलियों को पोंछ लिया था, अपनी उंगलियों को पोंछ लिया था, उंगलियों को पोंछ लिया था। कहा फिर अनस, कहा मेरे आका मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, जिस चीज से आपकी उंगली या आपका बदन टच हो जाए, दुनिया की आग क्या जहन्नम भी नहीं जला सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भैया। जहन्नम भी नहीं जला सकती। आपका बदन टच हो जाए, आपके बदन से कोई चीज मस हो जाए तो दुनिया की आग जहन्नम की आग नहीं जला सकती। नबी से निस्बत हो गई है, नबी का बदन कपड़े से टच हो गया तो कपड़ा अब जल नहीं सकता, आग के अंदर ताकत नहीं कि उस कपड़े को जला दे। अब सुने मुसलमानों, यहीं पे रुक जाए। अब हमारा कनेक्शन नबी से कैसे हो रहा है, हमारा ताल्लुक नबी से कैसे हो रहा है, हमारा मिलाप नबी से कैसे हो रहा है। हमने अपना हाथ अपने पीरो मुर्शिद सैयद फारूक के हाथ में दिया, उन्होंने अपना हाथ अपने पीर के हाथ में दिया, उन्होंने अपना हाथ अपने पीर के हाथ में दिया, उन्होंने अपने पीर के हाथ में करते करते खाजा पाक से उस्मान हारूनी उस करते वही हाथ मौलाए कायनात तक पहुंचा, करते वही हाथ रसूल पाक के हाथ में पहुंचा। अरे याद क्या पीर के हाथ में, लेकिन पीर ने
سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ایک نعرہ حیدری حضور پیر طریقہ مسلک اعلی حضرت قاری شکیل اختر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر آپ نے دیکھا ہے اس کو اور آسان سمجھنا چاہتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا زنجیر دیکھے ہیں نا ایک میں ایک کڑی پھنسی رہتی ہے ایک میں ایک کڑی پھنسی رہتی ہے یہ زنجیر ہے کڑی سے کڑی پھنسی ہے تو دروازہ بالکل بند ہے مضبوط ہے لائن کلیئر ہے اے لوگوں یہ کڑی ہی تو ہم پھنسا رہے ہیں اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں پیر کا ہاتھ دادا پیر پیر کا ہاتھ پر دادا پیر اسی طرح ہوتے ہوتے ہاتھ کا کنیکشن نبی تک تو ایمان ہے جب کپڑا نبی کے بدن سے ٹچ ہو جائے تو کپڑے کو آگ جلا نہیں سکتی تو جس نے اپنے آپ کو ایک اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیا پیرو یوسف کے ہاتھ میں دے دیا یقین کامل ہے وہ پیر نبی سے تعلق پیدا کر دے گا یہ جہنم کی آگ سے جلا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑھیا کہا اے لوگو سنو اور بھی سنیں ایک آل رسول ہے میں نے کہا تھا نا جو ہنسی ہو چکی ہے جو مذاق ہو چکا کیونکہ وہ ماحول کچھ اور تھا مدرسے کے لیے چندہ کرنا تھا تو ہنسا کے آپ سے لینا تھا مدرسے کی طرف آپ کی توجہات کو مرکوز کرنا تھا ماں بہن بیٹیوں نے بھی اثار کی اور بہنوں نے آپ نے بھی بہت زیادہ مدد کی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے اثار کو قبول و مقبول فرمائے لیکن سنیں ایک پیاری بات اور سن لیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن محمد شکیل اختر دعوے کے ساتھ بولتا ہے دعوے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی طرف سے گارنٹی نہیں کیا ہے نمازی تو مرے گا تو ایمان پر مرے گا جی نماز کی طرف سے گارنٹی نہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ کی طرف سے گارنٹی نہیں کہ روزے دار مرے گا تو ایمان پر مرے گا حج کی طرف سے گارنٹی نہیں کہ حاجی مرے گا تو ایمان پر مرے گا قرآن کی تلاوت سے گارنٹی نہیں مرے گا کہ ایمان پر مرے گا کہ بے ایمان ہو کر مرے گا آپ کیسے کہہ سکتے ہو بالکل کہہ سکتے ہیں دلیل کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ ان بزرگوں کی دعائیں شامل حال ہے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا قرآن کہہ رہا ہے آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے جس خوشی کا میں اظہار نہیں کر سکتا کہ آپ کے سامنے کالے رسول ہی نہیں ہے ایک پیر ہی نہیں ہے بلکہ ایک بہترین زبردست مصباحی عالم دین سبحان اللہ اور پیر عالم ہوتا ہے نا حقیقت میں نبی نے جو فرمایا پیر کے اندر 4 شرطیں ہونی چاہیے سب سے پہلی شرط یہ ہے وہ بہترین پہلی شرط ایمان اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو اتنا علم رکھتا ہو کہ مسائل شرعیہ کو قرآن و حدیث سے استخراج و استنباط کر کے نکال کر کے عوام کو سمجھا سکے سبحان اللہ بے شک ایسے بھی پیر دیکھے جاتے ہیں کڑیا پیر لوٹیا پیر چھوٹیا پیر نتھنیا پیر اٹھی پیر بیٹھی پیر گدھا پیر ایسے پیر اور ہمارے لوگوں کا مت کہیے اللہ اکبر ایسے لوگ ہیں نا وہ پیر کی خوبیوں کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا پیر نمازی ہے کہ نہیں روزے دار ہے کہ نہیں تقوی والا ہے کہ نہیں طہارت والا ہے کہ نہیں شریعت والا ہے کہ نہیں بس دیکھا جاتا ہے وہ پیر بڑھیا تعویذ بناتا ہے کہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ایسا اب میں دیکھتا ہوں اس سے جھولا چھاپے کے پاس چلے جاتے ہیں جو ایک کو نماز نہیں پڑھتا تھکا یار وہ پیر کہلانے کے لائق ہے اس کے ہاتھ میں دیں گے جو خود ہی نہ جانے کہاں جائے تو کہاں لے کر کے جائے گا مریدوں اب غور کرو قرآن کہہ رہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا یہی قرآن جس سے بہت لوگ گمراہ ہوتے اور یہی قرآن جس سے بہت لوگ ہدایت پاتے اب میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں حضرت کے سامنے میری زیادہ ہمت نہیں کہ میں زیادہ کچھ بولوں لیکن آج بولوں گا کیونکہ مجھے یقین ہے اگر غلطی
गलती होगी तो हजरत हमारी इस्लाह फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसी जगह मुझे तकरीर करते हुए बड़ा मजा मिलता है जहाँ कोई इस्लाह करने वाला मौजूद है। वाह भाई वाह, तो डर नहीं रहता, उस वक्त डर नहीं रहता। मुझसे बड़ा आलिम मौजूद है, मुझसे बड़ा पीर तरीकत मौजूद है, एक आले रसूल मौजूद है। सुने तो कुरान ने कह दिया, इसी कुरान से बहुत लोग गुमराह भी होते हैं, इसी कुरान से बहुत लोग हिदायत पाते हैं। आप लोगों को याद है कुरान तो हिदायत के लिए है, कुरान तो हिदायत के लिए है। फिर कुरान पढ़ करके गुमराह कैसे हुआ? क्यों गुमराह लोग गुमराह नहीं हुए हैं। इसी कुरान को जिसने नबी की मोहब्बत के बगैर पढ़ने और समझने की कोशिश की वो गुमराह हो गए, बेशक सही, वो गुमराह हो गए। जैसे किसी ने कुरान पढ़ा, कुरान में अल्लाह फरमाता कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, बस इतना पढ़कर सुना दिया। ए नबी आप कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। मफहूम निकाला, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ। कहा यार जैसी हमारी आँख है वैसे माज़अल्लाह नबी की आँख है, जैसे हमारे पैर उनके पैर, हमारी उंगलियां उनकी उंगलियां। नादान अगर समझता तो ऐसा न कहता। अगर तेरा वजूद है दुनिया में तू आया है तो समझ ले उसी नबी के कदमों की सुभान अल्लाह, वाह वाह, उसी नबी के नूर का सदका है। अगर वो नबी ना आते तो कायनात का वजूद न होता, जमीन न होती, ज़मान न होता, आसमान न होता, चांद न होता, सितारे न होते, सूरज न होता, ये हवा, ये पानी, ये आग, ये मिट्टी, किसी चीज का वजूद न होता। अगर दुनिया का वजूद है तो उसी मुस्तफा के नूर का सदका है, उसी मुस्तफा के नूर का सदका है, उसी मुस्तफा के नूर का सदका है। और ये समझ लो उधर नहीं जाऊंगा वरना बात अलग चली जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था नमाज की तरफ से गारंटी नहीं, रोजे की तरफ से गारंटी नहीं, हज की तरफ से गारंटी नहीं, कुरान की तिलावत की तरफ से गारंटी नहीं, है पढ़ने वाले, रखने वाले, इबादत करने वाले, इस इबादत की तरफ से गारंटी नहीं कि तू मरेगा ईमान पर या बेईमान होकर, बेईमान होकर, गारंटी नहीं, गारंटी नहीं। लेकिन अक्सर हमारे उलमा बयान करते हैं, सुनो एक ऐसा अमल है जो अमल करोगे वो अमल जमानत देगा, है अमल करने वाले उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तेरा ईमान मुकम्मल न हो जाए। मरेगा तो बेईमानी की हालत में नहीं मरेगा, मरेगा तो ईमान पर मरेगा। कहा वो क्या है? कहा सुनो हमेशा उलमा बयान करते हैं। कहा क्या बयान करते हैं? सुनो रसूल पाक फरमाते हैं मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगो जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है वो ईमान पर मरता है, ईमान पर खात्मा होता है। एक आले रसूल तशरीफ फरमा है। और आगे चलें, और आगे चलें। ये सुल्तानुल औलिया कॉन्फ्रेंस है, मैंने कहा था ना कुछ लेकर के जाइएगा। आज हम वलियों की बारगाह में जाते हैं, कुछ मांगते हैं तो नादान कह देते हैं यार ये अल्लाह वाले तुम्हें क्या देंगे, ये खुद ही अल्लाह के मोहताज हैं, ये खुद ही मोहताज हैं, ये तुम्हें क्या देंगे। कुछ लोग तो फतवा लगा देते हैं सुन्नी बिदअती है, सुन्नी मुशरिक है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमने पूछा एक भाई से, कहा क्या बात है यार क्यों इस तरह से फतवा लगाते हो? कहा मौलाना जानते नहीं हो आप लोग अल्लाह को छोड़कर वलियों को मानते हैं। हमने कहा हम कहते क्या हैं? कहते हो तो उसने खुद ही कहा आप कहते हो वली अल्लाह। हमने कहा इसका माना क्या होगा? कहा अल्लाह के वली, अल्लाह के वली। हमने कहा अल्लाह को छोड़ते तो अल्लाह के वली को मानते क्यों? यानी फिर भी आप लोग गलत करते हैं, उन वलियों से मांगते हैं, उनके पास क्या पावर है? हमने कहा सुनो मैं सुन्नियों की किताब से नहीं, एक अहले दयाबना में एक बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम हैं जिनका नाम है इस्माइल दहलवी। क्या नाम है? इस्माइल। बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ समझने के लायक। उनकी एक किताब है सिराते मुस्तकीम, ठीक ना, उसमें मैंने पढ़ा था। उन्होंने लिखा एक मिसाल दिया, एक मिसाल दिया। ऐ लोगों वलियों का मकाम क्या होता है? एक मिसाल के जरिए समझाते हैं, वो खुद ही समझाते हैं। कहा कि मैं एक लोहा लिया। क्या लिया? लोहा लेकर के लोहार के पास गया। कहाँ गया? लोहार आपके समझने के, लोहार के पास गया और उन्होंने कहा लोहार भैया ये लोहा लो और इसकी कुल्हाड़ी बना दो, इसकी कुल्हाड़ी बना दो। उस लोहार ने कहा थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। उस लोहार ने लोहा लिया और आग जल रही थी, आग की भट्टी में डाल दिया, आग की भट्टी में डाल दिया। जब आग की भट्टी में डाल दिया तो उधर जब बिल्कुल आग ने अपना असर उस पर कर दिया, बिल्कुल दिखने में आग नजर आ रहा था, लोहा आग की तरह उसकी शक्ल, अंगारे की तरह शक्ल, लोहा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि अंगारा है कि लोहा है। और निकाला कि हथौड़ी मारा,
आलिम ने हाथ बढ़ाया, ये मेरा लोहा है। लोहार ने कहा आलिम साहब छूना मत वरना जल जाओ, छूना मत वरना। आलिम साहब ने कहा लोहार भैया मैं हाथ में उठा के झोले में रखा, झोले में से निकाल के आपके हाथ में दिया, आपने अपने हाथ से अंगाने में डाला, न झोला जला, न मेरा हाथ जला, न आपका हाथ जला। अब कैसे मेरा हाथ जल जाएगा? अब मेरा हाथ जब लाया तब नहीं जला, न मेरा हाथ न तेरा हाथ, तू आग की भट्टी से निकाला, अब हाथ जलेगा क्यों? लोहार ने कहा क्या बात, पढ़े लिखे इंसान हो ये भी नहीं समझते हो? कहा क्या? सुनो सुनो, जब तुम लेकर के आए थे तो लोहा लोहा था, जब मेरे हाथ में दिए तो लोहा लोहा था, जब मैंने अपने हाथ से अंगारे के अंदर डाला लोहा तो लोहा है, लेकिन कुछ देर तक आग की भट्टी में रहने के बाद आग ने लोहे पे अपना असर डाल दिया। आग ने लोहे पे अपना असर डाल दिया। आलिम ने कहा कहना क्या चाहते हो लोहार भाई? काश नहीं, जब लेकर के आए थे तो आग का असर नहीं था, मैंने पकड़ा आग का असर नहीं था, अब आग में डालने के बाद उस लोहे पे आग ने अपना असर कर दिया। आलिम ने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कहना ये चाहते हैं कि आग में पड़ने के बाद कुछ देर आग की संगत में रहने के बाद कुछ देर आग में रहने की वजह से आग ने अपना मुकम्मल असर छोड़ दिया है, मुकम्मल असर छोड़ दिया है। जो काम आग का होगा वही काम लोहा भी करेगा, जो काम आग करेगी वही काम लोहा करेगा। कहा आलिम ने क्यों? कहा इसलिए कि आग ने अपना असर लोहे पे छोड़ दिया है, तो जितना असर होगा, जितनी कभी असर होगा, जितना ताकत असर होगा, उसी तरह लोहा भी आग की तरह जलाने का काम करेगा। तब तक आलिम बोल बैठा, वो लोहार भैया तूने तो मसला साबित कर दिया, तूने तो बड़े अच्छे अंदाज में मसला हल कर दिया। कहा क्या मसला हल कर दिया? कहा तूने कहा है अगर आग में, अगर भट्टी में लोहा कुछ देर तक रह जाए तो आग अपना असर लोहे पे डाल देती है, आग अपना असर लोहे पे डाल देती है। जो काम आग का होगा वही काम लोहे का हो जाएगा। आग का काम है जलाना, अब लोहा भी जलाएगा। अब जितनी उसके अंदर कैपेसिटी होगी, जितनी उसके अंदर ताकत होगी, वो आग के असर को उतनी कैपेसिटी के एतबार से, उस आग के एतबार से आग अपने असर को डाल देगा। लोहा अपना उसका असर ले लेगा, आग अपना असर डालेगी, लोहा असर ले लेगा। कहा फिर मसला क्या हल हुआ? कहा तूने कहा लोहार कि आग ने अपना असर डाल दिया, जो काम लोहे का वही काम आग का, जो काम आग का वही काम लोहे का। लेकिन सुनो, जिस तरह आग जलाती है अब लोहा भी जलाएगा, लेकिन आग आग ही रहेगी, लोहा लोहा रहेगा। न आग लोहा हो सकती है, न लोहा आग हो सकती है, बस असर लोहा पर आग अपना असर लोहे पे डाल देगी तो लोहे के अंदर भी जलाने की ताकत आ जाएगी, जलाने की ताकत आ जाएगी, झुलसाने की ताकत आ जाएगी। तो आलिम ने कहा मसला ये हल हुआ। तूने कहा कुछ देर तक अगर लोहा आग में पड़ जाए तो आग अपना असर डाल देती है। इसी तरह जब बंदे मोमिन, इसी तरह जब अल्लाह वाले अपने आप को तकवा की भट्टी में जला देते हैं तो जो काम अल्लाह करता है वही काम बंदा लेकिन समझिएगा शकील कुफ्र बोल रहा है। नहीं, आग ने अपना असर लोहे पे डाला है तो जितनी उसके अंदर कैपेसिटी होगी बस उतनी देर तक लोहा गर्म है, उतनी देर तक लोहा गर्माएगा। इसी तरह अब बंदे की मिसाल है, जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी होगी वो उसी एतबार से बनेगा। अब बंदा होगा, खुदा होगा, खुदा बंदा नहीं हो सकता, बंदा खुदा नहीं हो सकता, खुदा होगा। ये बंदा तकवा की भट्टी में जलकर अल्लाह की सिफात का मज़हर, अल्लाह की सिफात का मज़हर बन जाएगा। अल्लाह की सिफात है देने वाला, अल्लाह की सिफत में है सुनने वाला, अल्लाह की सिफत है जानने वाला, अल्लाह की सिफत है जिंदा करने वाला, अल्लाह की सिफत है मुर्दा करने वाला। तो बंदा अल्लाह की सिफात का मज़हर बन जाता है। अब जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी है, कोई सूफी निजामुद्दीन बनता है, कोई हाफिज़ मिल्लत बनता है, कोई शदरू शरिया बनता है, कोई ताजु शरिया बनता है, कोई मुफ्ती आज़म हिंद बनता है, कोई अहमद रज़ा बनता है,
अजी जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी है, कोई देवा का वारिस बनता है, कोई अजमेर का खाजा बनता है। जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी है, कोई बाबा फरीद बनता है, कोई दादा अली हुसैनी बनता है। जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी है, कोई गौसे पाक बनता है, कोई गौसे पाक बनता है, कोई सईद मखदूमी बनता है, कोई सिल्ली सिद्दीकी बनता है, कोई बायजीद बुस्तानी बनता है, कोई ख्वाजा अबुल हसन खिलकानी बनता है, कोई ख्वाजा हसन बसरी बनता है। ये कह जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी, उसी एतबार से कोई मौलाए कायनात बनता है, तो कोई उस्मान बनता है, कोई उमर बनता है, कोई सिद्दीक बनता है, कोई नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह। तो जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी है, तो अल्लाह वाले तकवा और तहारत की भट्टी में जलकर अल्लाह के सिफात के मजहर बन जाते हैं, अल्लाह की सिफात के मजहर बन जाते हैं। तो बंदा बंदा होता है, खुदा खुदा होता है। इसको और आसान कर दूं, आसान समझेंगे? लेट नहीं हो रहा है, लग रहा थक गया। बोले थोड़ा बोले, ये सुभान अल्लाह मत बोले, लेकिन गौर से सुनो। मैं इसका आदी नहीं हूँ कि लोग बोले सुभान अल्लाह, न मैं कभी कहता हूँ नारा लगाओ, और जितना टाइम नारा वेस्ट होता है ना, उतना बातों में वेस्ट हो जाता है। बढ़िया बेशक सही, बढ़िया। सुने कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, कुरान, क्योंकि आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया, सुन्नियों पे इतने हमले होते हैं ना कि बेचारा करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। एक मौलवी साहब से तकरीर कर रहे थे जो मैं बड़ा धुआंधार है, गैर को चूमना शिर्क है, हराम है, हराम बड़ी फतवा पे फतवा, चूमना हराम है, नाजायज है, बड़े फतवे बरसा रहे। और उसी में एक TTS भी बैठा था उसी जुमे में, और घर पे मौलवी साहब की बीवी परेशान थी। मौलवी साहब फतवा देने में मशगूल हैं, इधर उनका बच्चा अपनी माँ को मारा, तबाह कर दिया। अब जैसे मौलवी साहब घर आए, नमाज पढ़ने के बाद बीवी बरस गई। कहा यार इतने देर के बाद आया, जान खा लिया मेरा बच्चा, चुप नहीं रहा, इतना रो रहा है कि मेरी हालत खराब हो गई। अब मौलवी साहब बेचारे लिए अपने बच्चे को बाहर निकले रोड पे, मेरे लाल चुप हो जा, मेरे लाल चुप हो जा, मेरे लाल चुप हो जा, तू मेरा दिल है, मेरा जिगर है, मेरी उजड़ी है, मेरी पचौदी है, चुप हो जा, मेरे लाल चुप हो जा, मत रो। अब चुप ने कहाँ चुप रहा, गए दुकान पे, टॉफी लिया मुंह में ठूसा, बिस्कुट लिया मुंह में ठूसा, मेरे लाल चुप हो जा, चुप हो जा। अब जैसे बिस्कुट बच्चा पाया, टॉफी पाया, चुप। अब मौलवी साहब बड़े खुश, कभी उसके गाल को चूमते हैं, कभी नाक को चूमते हैं, कभी पेशानी चूमते हैं, कभी आंख चूमते हैं, मेरे लाल तो चुप हो गया, मेरे लाल तो चुप हो गया। अब चूम रहे हैं, कभी गाल चूमते, कभी होठ चूमते, कभी पेशानी, कभी सीना, कभी हाथ। तब तक कोई TTS आ गया। कहा मौलवी साहब ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कहा अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? कहा अपने बच्चे को चूम रहा हूँ। कहा अभी तो फतवा दियो गैरुल्लाह को चूमना हराम, अभी तो फतवा दियो गैरुल्लाह को चूमना हराम, फिर चूम क्यों रहे हो? क्यों चूमे? कहा किसी बात करके हो? मैंने चूमा अपने बेटे को इसलिए कि मुझे बेटे से प्यार है, मुझे बेटे से प्यार है, बेटे से प्यार है। कहा उसकी अगर तुझे बेटे से प्यार है तो तूने बेटे को चूम लिया, अब फतवा नहीं देता। बेटे को मैंने चूमा है क्योंकि बेटे से प्यार है। तो कहा सुन, अगर सुन्नी चूमता है, चाहे मज़ारे देवा को चूमे, चाहे मज़ारे अजमेर को चूमे, चाहे अपने पीरो मुर्शिद के हाथ पैर को चूमे, तो चूमता इसलिए कि उसे अपने पीर से प्यार है, वलियों के मज़ार से प्यार है। और सुन ले, ये चूमना प्यारे आका की सुन्नत मुबारका है। मुस्तफा ने इंसान को भी चूमा है, मुस्तफा ने पत्थर को भी चूमा है। और आगे बढ़कर देखें, कहते हैं तुम कहते हो कि अल्लाह के वली पे ज़बान पे खुदा बोलता है। मैंने कहा हाँ, अल्लाह के वलियों पे अल्लाह के वलियों की ज़बान पे अल्लाह बोलता है, अल्लाह बोलता है। कहा ये भी कुफ्र है, ये भी शिर्क है। हमने कहा नहीं, गलत कह रहे हो। आज देखें मुसलमानों, आज हमारे पास इल्म की इतनी कमी है कि गुमराह हमें गुमराह कर देता है, बदमज़हब
हमें बदमज़हब बनाने की कोशिश करता है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत ने मुझे कुछ चीज़ों को दिखाया। कहा बाबू शकील देखो, धुलिया में ये काम हो रहा है, वहाँ सुल्तानी मदरसा है, निस्वा के लिए इमारत खड़ी हो रही, काम चल रहा है, एक जगह निस्वा चल भी रहा है। हजरत ने दिखाया मदरसे की तस्वीर को, पूरी वीडियो दिखाया, कितना आलीशान मदरसा है, खूबसूरत मदरसा है, दीन का काम आले रसूल कर रहे हैं, बच्चे पढ़े आले रसूल समझते हैं, क्योंकि नबी करीम पर ही आयत नाजिल हुई थी, नबी के ऊपर ही आयत नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, नबी के ऊपर ही नाजिल हुई थी कि मुस्तफा पढ़े, मुस्तफा पढ़े, अपने रब के नाम के साथ पढ़े। हम उस कौम के लोग हैं, हम उस धर्म के मानने वाले हैं, उस मजहब के मानने वाले हैं, जिस मजहब की जो लारैब किताब है, जो मजहब के लिए, जो कौम के लिए, लोगों के लिए जो लारैब किताब मिली है, उस किताब की पहली आयत है इक़रा, पढ़ाई के ताल्लुक से आयत नाज़िल हुई है। हम किताब पढ़ने से दूर हैं, हम मुताला से दूर हैं, हम सबक पढ़ने से दूर हैं, हम खुद दूर हैं, अपने बच्चों को भी दूर कर रहे हैं। मेरी माँ बहनों, आप भी गौर से सुने, आज हमारा हाल क्या है, हम कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, घरों में गाने तो बज रहे हैं, कुरान की तिलावत नहीं हो रही है, घरों में टीवियां देखी जा रही हैं, कुरान की तिलावत नहीं हो रही है। हमारा बच्चा कान में आला लगाकर गाना सुनता हुआ नजर आ रहा है, गाना सुनते सुनते सो जाता है। मैं कहना चाहूंगा एक हजूर मेरे नौजवान भाइयों, आपने कान में आला लगाकर गाना सुनते सुनते सो गए हो, अगर खुदा न खास्ता उसी वक्त तेरी मौत लिखी हो तो यही कहा जाएगा ना कि नादान कितना ऐसा इंसान था, गाना सुनते सुनते मर गया है, गाना सुनते सुनते मर गया, फिल्म देखते देखते मर गया। मुझे अफसोस होता है आज की माओं पे, आज की बहनों पे कि बहन टीवी देख रही है, बहन गाना सुन रही है, घर की मुकद्दस औरतें फिल्में देख देख करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले रही है। लेकिन ऐ लोगों, हमने अपना हाथ एक पीर के हाथ में दिया है, एक रहबरे राह शरीयत के हाथ में दिया है, पीर तरीक़त के हाथ में दिया है। ये हाथ देने का मतलब क्या है? बंदा तौबा कर ले कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह के रास्ते पे नहीं जाऊंगा, तौबा कर ले कि मैं बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा, तौबा कर ले आज के बाद मैं गाना नहीं सुनूंगा, ये तौबा कर ले आज के बाद मैं फिल्म नहीं देखूंगा, ये तौबा कर ले आज के बाद मैं गीबत नहीं करूंगा, तौबा कर ले आज के बाद मैं चुगली नहीं करूंगा। आज कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे समाज में नहीं है? कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे माशरे में नहीं है? आप देखें, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बुराइयों में हम और आप फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी बुराई बता दूं क्या है? सबसे बड़ी बुराई है माँ बाप की नाफरमानी। जी जी सही। सबसे बड़ी बुराई माँ बाप की नाफरमानी। हजरत बैठे, पूछ लीजिएगा बात। आप इनका हाथ चूमते हैं, इनके पैर को चूमे, इनके लिबास को चूमे, इनके रुमाल को चूमे, इनके तलवों को चूमे, इनके कदमों को चूमे, अल्लाह खुश होगा। लेकिन घर में माँ आंसू बहा रही, बाप रो रहा है, बाप को गाली दे दिया है, माँ को धकेल दिया, और माँ को नाराज करके आ गया पीर के कदम चूमने। कहाँ गया? पीर के कदम चूमने। पॉइंट नोट कीजिएगा। घर में माँ रो रही है, घर में बाप रो रहा है, माँ के दिल को तकलीफ दिया, बाप के दिल को तकलीफ दिया, उधर माँ तकलीफ में है, बाप तकलीफ में है, और आ गया अल्लाह की कसम, न वो पीर राजी होगा न परवरदिगार राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर उसी वक्त राजी होगा क्योंकि पीरों के पीर, सारे पीरों के पीर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त राजी होंगे जब माँ राजी होगी, जब बाप राजी होगा। ये माँ जानते हैं क्या है? माँ का मकाम क्या है? बहनें थोड़ी देर के लिए और सुन लें, माएँ थोड़ी देर के लिए और सुन लें। 26वां पारा, कौन सा पारा? 26वां पारा सूरह अहकाफ है, सूरह अहकाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तर्जुमे कुरान पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। सूरह अहकाफ, सूरह अहकाफ 26वें पारे की एक दिन तफसीर पढ़ा रहे थे, तर्जुमे कुरान, तब तक यही आयत मेरे सामने आई। अल्लाह की कसम, मैं अपने माँ से, बाप से बड़ा प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है आज मैं अगर इस मकाम तक पहुंचा हूं ना, तो माँ बाप की दुआएं और ऐसे बुजुर्गों की दुआओं का सदका। आज तक मैंने अपने बाप का जवाब नहीं दिया। मेरे वालिद गिरामी भी एक बेहतरीन आलिम दीन है, सुभान अल्लाह। मेरे दादा भी वली कामिल थे, अल्लाह का करम है। बाप भी आलिम, दादा भी आलिम, मेरे मामू भी आलिम हैं, मेरे चचाजाद भाई भी आलिम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का एक गिरोह है हमारे खानदान का। और ये समझ लें,
माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। आप वलियों से प्यार करते हैं ना, सारे वलियों की हिस्ट्री पढ़ें, कोई ऐसा वली नहीं है जिसने अपने माँ को तकलीफ दी हो। मैं तो कहता हूँ कुछ ऐसे औलिया हैं, अगर मकाने विलायत मिला है तो माँ की दुआओं के सदके में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत अगर मिली है तो माँ की दुआओं के सदके में मिली है। जिन्हें कहा जाता है सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी, अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया है। किस बुनियाद पे? उन्होंने खुद कहा था अगर मुझे मकाम रफिया, अगर मुझे बेहतरीन आला मकाम मिला है तो सिर्फ और सिर्फ माँ की दुआओं के सदके। गौर कर, सूरह काफ है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमाता है इंसान को ववस्सैना इंसान बिवालिदैहि इंसाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता हमने इंसान को वसीयत की है अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करने की। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर आगे अल्लाह फरमाता है कौन सी माँ, कैसी माँ? गौर करें मेरे नौजवान भाइयों, ये ऐसा वक्त है ना दुआएं कबूल होती हैं। ये वक्त बहुत निराला वक्त है, समझ लें, ये खास वक्त में हम चल रहे हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमाता है कि उसकी माँ तकलीफ के साथ उठाए रखे। किसके साथ? तकलीफ के साथ। कब कब? जब बच्ची माँ के पेट के अंदर होते हैं ना, तो माँ बड़ी तकलीफ में अपने बच्ची को पेट में रखती है। और इस तकलीफ को महसूस करना है ना, जो जितने लोग बाप बन चुके हैं अपनी बीवी से पूछ लें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। कितने लोग आते हैं मौलाना शकील साहब थोड़ा तावीज बना दीजिए, किस लिए? तो मेरी बीवी हमल से है ना, जब से हमर ठहरा उल्टी नहीं बंद हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कमर में दर्द है, कुछ लोग कहते हैं बीवी को चक्कर आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं बीवी बीमार पड़ रही है, कुछ लोग कहते हैं बीवी काम नहीं कर पा रही है। तो कभी हमने गौर किया, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है ना, पहला महीना सुकून में है, दूसरा महीना उससे कठिन, तीसरा महीना उससे कठिन, चौथा महीना उससे भी कठिन, पांचवा महीना उससे भी कठिन, छठा महीना उससे भी कठिन, सातवां। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते तकलीफ बढ़ती जाती है। एक माँ से पूछो कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। उसका उठना दुश्वार होता है, चलना दुश्वार होता है, बैठना दुश्वार होता है, लेटना दुश्वार होता है, करवट बदलना दुश्वार होता है, सही से काम नहीं कर पाती है, चलती है तो संभल के चलती है, कहीं पेट में बच्चे को तकलीफ न हो जाए, कदम उठाती है तो संभल के उठाती है, कहीं पेट में बच्चे को तकलीफ न हो जाए, बिस्तर पे जाती है तो करवट संभल के लेती है, पेट में बच्चे को तकलीफ न हो जाए, कोई चीज उठाती है तो संभल के उठाती है, पेट में बच्चे को तकलीफ न हो जाए। यार कहाँ खो गए हम? माँ को सताते हैं, बाप को तकलीफ देते हैं लोगों। माँ बाप को कभी न सताना। जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, कितनी तकलीफों को बर्दाश्त किया है, कितनी मुसीबतों को झेला है, माँ होती है। अल्लाह फरमाता है उसकी माँ तकलीफ के साथ उठाई रखी है, तकलीफ के साथ उठाई रखी। सुने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, एक नौजवान की शिकायत की गई कि हुजूर एक नौजवान है अपने माँ को बहुत तकलीफ देता है, बड़ा सताता है। हजरत उमर फारूक ने कहा जाओ उस नौजवान को बुला कर लाओ। गया एक इंसान, कहा चलो तुम्हें उमर फारूक ने बुलाया है। वो नौजवान आया, कहा हुजूर जी हाजिर हूँ, क्या बात है? कहा मैंने सुना कि माँ को तकलीफ देता है। कहा हुजूर मैं बार बार नहीं देता, कभी कभी माँ से झड़प हो जाती है, कभी कभी माँ को डांट देता हूँ, कभी कभी माँ को झिड़क देता हूँ। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते सुन ले, मैं तुझे सजा दूंगा और जो सजा दूंगा तुझे मानना पड़ेगा। उस नौजवान ने कहा हुजूर मैं जरूर मानूंगा, आप जो सजा देंगे मैं कबूल करूंगा, जो सजा देंगे मैं मान लूंगा। कहा सुन तुझे कोड़े नहीं मारूंगा, तुझे डंडे नहीं मारूंगा, तुझे हथकड़ियां नहीं पहनाऊंगा, तुझे जेल में नहीं डालूंगा, जो तुझे सजा दूंगा वो तुझे मानना पड़ेगा। कहा हुजूर मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्या सजा दे रहे हैं? कहा सुन एक इंसान को, एक जवान को हुक्म देते हैं जाओ मशकीज़ा लेकर
लेकर के आओ, चमड़े का। अपने बर्तनों में पानी भरते हैं ना, डब्बों में पानी भरते हैं, इसी तरह मशकीज़े में पानी वगैरह रखा जाता था। उमर फारूक ने मशकीज़ा बुलाया, मशकीज़े में पानी भरवा दिया, उसका मुंह बांध दिया गया और उस नौजवान के पेट में मशकीज़ा बांध दिया गया है। और उमर फारूक ने कहा, ए नौजवान सुन ले, जब तक मैं न कहूं अपने पेट से इस मशकीज़ा को नहीं खोल सकता। अगर खोल दिया तो बीच चौराहे पे तुझे खड़ा करके कोड़ा मारा जाएगा। वो नौजवान बांध दिया गया पेट पे, मशकीज़ा पेट पे बांध दिया गया। बहुत ज्यादा होगा, 4 लीटर 5 लीटर। जब पेट पे बांध दिया गया, कहा जा यही तेरी सजा है। वो गया है। रात किसी तरह गुजरी, सुबह होते ही माँ के कदमों पे गिर गया, रो रहा है, चिल्ला रहा है। माँ देखकर तड़प गई, कहा मेरे लाल क्या बात है, इस तरह क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ पहुंच गई है, क्यों दर्द में तड़प रहा है। कहा माँ मैं मर जाऊंगा, माँ मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, माँ मेरे पैर जवाब दे चुके हैं, माँ मेरी कमर टूटी जा रही है, माँ मेरा पेट दर्द में मुब्तला है, माँ अगर तू नहीं बचाएगी तो तेरा बेटा जीते जी मर जाएगा, माँ मैं बहुत तकलीफ में हूँ, माँ मुझे बहुत दर्द है। कहा बेटा हुआ क्या है। माँ को ये सारी बातें मालूम नहीं थी कि मेरे बेटे के साथ क्या क्या हुआ है। कहा बेटा बता तो सही क्या हुआ है। कहा माँ मुझे उमर फारूक ने सजा दी है। कहा बेटा किस लिए। कहा लोगों ने शिकायत की है मैं तुझे तकलीफ देता हूँ। उमर फारूक ने शिकायत की है, उमर फारूक तक शिकायत की गई है, उमर फारूक ने मुझे सजा दी है। कहा क्या किया उमर फारूक ने। कहा माँ मेरे पेट में ये मशकीज़े में पानी भरकर बांध दिया गया है, मशकीज़े में पानी भरकर मेरे पेट पे बांध दिया गया। माँ जब से बांधा गया है ना, मेरा उठना दुश्वार है, बैठना दुश्वार है, चलना दुश्वार है, मैं बैठ नहीं पा रहा, इस्तिंजा सही नहीं कर पा रहा, पाखाना नहीं कर पा रहा, माँ मैं सही से बिस्तर पे लेट नहीं पा रहा, माँ मैं करवट नहीं ले पा रहा, माँ मेरे कमर में बड़ा दर्द है, पेट में दर्द है, पैरों में दर्द है, माँ अगर इसी तरह रहा तो तेरा बेटा मर जाएगा, माँ कुछ करो। माँ होती है, माँ होती है, माँ कभी नहीं चाहती कि बेटा दर्द में हो, माँ कभी नहीं चाहती कि बेटा तकलीफ में हो। अल्लाह अकबर। वो माँ कहती बेटा फिक्र न कर, मैं तुझे लेकर चलूंगी उमर फारूक की बारगाह में, मैं तेरे लिए माफी तलब करूंगी, मैं कहूंगी उमर फारूक से कि मेरे बेटे को माफ कर दिया जाए। कहा माँ जल्दी चलो, बड़ी तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर। अब आगे आगे माँ जा रही है, पीछे पीछे नौजवान जा रहा है, पहुंचे हैं दरबार फारूकी में। वो खातून आगे गई है, उमर फारूक तशरीफ फरमा है, आंसुओं के कतरात निकल रहे हैं। कहा हुजूर आपने मेरे बेटे को सजा दी है। कहा कौन था तेरा बेटा, कौन है तेरा बेटा। कहा हुजूर ये मेरे पीछे खड़ा है। कहा हट जाओ, किनारे हट जाओ। वो औरत किनारे चली गई। कहा नौजवान को मेरे सामने करो। वो नौजवान आया है, बिल्कुल चेहरा बदला हुआ है, बिल्कुल लग रहा है कि कितनी तकलीफों में है। उमर फारूक ने कहा अपने माँ को लेकर क्यों आया है, क्यों अपने माँ को लेकर क्या गया। कहा हुजूर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, पैर में, कमर में, पेट में, पूरे बदन में दर्द है, मेरी कमर टूटी जा रही है, मेरा पैर फटा जा रहा है। हुजूर मैं बहुत तकलीफ में हूँ, इसलिए मैं अपने माँ को सिफारशी बना कर लाया हूँ, अपने माँ को आपकी बारगाह में लाया हूँ। कहा नादान क्यों, आखिर हो क्या गया। कहा हुजूर जब से आपने मेरे पेट पे ये बोझ बांध दिया है ना, मेरा उठना बैठना चलना फिरना जागना सब कुछ बड़ा दुश्वार हो गया है। उमर फारूक ने कहा नादान कितना देर हुआ बांधे हुए। कहा हुजूर अभी तो एक दिन मुकम्मल नहीं हुए, मतलब एक दिन एक रात अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। उमर फारूक जलाल में आकर फरमाते हैं नादान अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि तेरी कमर टूटी जा रही है, तेरा पेट फटा जा रहा है, तेरे पैर टूटे जा रहे हैं, तू तकलीफ में मुब्तला है। नादान गौर कर, एक बोझ को 24 घंटा बर्दाश्त न कर सका, लेकिन तेरे बोझ को तो तेरी माँ ने 9 महीने, सुभान अल्लाह, तेरी माँ ने तो 9 महीने तक बर्दाश्त किया है। बता तेरी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, बता। वो नौजवान उमर फारूक के कदमों पे गिर के रो रहा है। कहा हुजूर मुझे माफ कर दें। उमर फारूक ने कहा नादान सुन ले, मुझे राजी मत कर, मेरे कदम मत पकड़, मुझे राजी मत कर, मेरे सामने आंसू मत गिरा। अगर रोना है, पकड़ना है, अपने माँ के कदम को पकड़ ले, माँ को राजी कर ले। अगर माँ राजी हो गई तो परवरदिगार भी राजी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है हम कुरहा, उसकी माँ तकलीफ के साथ उठाए रखी है। और फिर आगे यही तक नहीं बल्कि अल्लाह फरमाता वो माँ ववज़अतहु कुरहा, ववज़अतहु कुरहा, हमलतहु कुरहा, ववज़अतहु कुरहा,
اس کی ماں تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھی ہے اور اس کی ماں تکلیف کے ساتھ جنی بھی ہے، تکلیف کے ساتھ اس کی پیدائش بھی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک عورت کو کتنا درد ہو سکتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے وہ عورت ہی بتا سکتی ہے۔ مرد اس کو اپنے دائرے اختیار میں نہیں لا سکتا ہے، کتنی تکلیف ایک عورت کو ہوتی ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے لیے آپ سلطان الاولیاء کانفرنس میں تشریف فرما ہے، کچھ سیکھیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کریں۔ بس آخری بات بتا دے رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی، کیونکہ بہت رات ہو چکی ہے، 1:30 بجنے والے، 1:25 ہو چکا ہے۔ بس ایک بات اور سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو ختم کر دے رہا ہوں۔ اولیاء سلطان الاولیاء کانفرنس ہے، رہبر شریعت ہے، اتنے علماء ہیں، آپ لوگ ماں بہن بیٹیاں سبھی ہیں، یہ سمجھ لیں اولیاء اللہ سے پیار کیا جائے، اللہ والوں کی قربت اختیار کی جائے۔ اللہ والے تو وہ دے دیتے ہیں جو زمانے کا کوئی انسان نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ والوں سے قربت اختیار کریں، اللہ والوں کے قریب ہو جائے۔ اگر اللہ والوں کی سنگت مل گئی نا تو سمجھ لیں دنیا آپ کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اگر اللہ والوں کی قربیت حاصل ہو گئی یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ والوں سے بالکل قریب رہیں، جب اللہ والوں کے قریب رہیں گے یہ اللہ والے آپ کی نماز کی حفاظت کریں گے، یہ اللہ والے آپ کے روزے کی حفاظت کریں گے، یہ اللہ والے آپ کے تقوی کی حفاظت کریں گے، یہ اللہ والے آپ کے نماز، روزہ، حج، زکات، آپ کے سارے اعمال کی حفاظت یہ اللہ والے کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے ہاتھ کو اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دو، اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دو۔ جب یہ ہاتھ کسی ولی کے ہاتھ میں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو سمجھ لیں جیسے آپ نے اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا ہے، اب آپ کو سنبھالنا، آپ کے ایمان کو بچانا، آپ کے اعمال کو بچانا اب آپ کے پیر کا کام ہو گیا ہے۔ پیر آپ کے سنبھالے گا، پیر آپ کی دیکھ ریکھ کرے گا، پیر آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، پیر آپ کے اعمال کی بھی حفاظت کرے گا۔ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور یہ سمجھ لیں اللہ والوں سے جہاں تعلق پیدا ہوا، اللہ والوں کی قربیت جہاں حاصل ہوئی ہے، بندے کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اور کیسے بڑھتا ہے ایک مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں۔ آپ سمجھیں کہ قربیت حاصل کرنے سے مقام کیسے بلند ہوتا ہے، تو سنیں ایک کتاب میں ایک عالم نے بڑا اچھا مثال دیا تھا اور مجھے بڑا پسند آیا۔ آپ نے دودھ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، عجوبہ نہیں بول رہا ہوں، دودھ دیکھے نا، بولیے ہاں ہاں بولنا تاکہ نیند ادھر تو بھاگ جائے۔ دودھ اور پانی، بغیر پانی کے گزارا نہیں۔ ایک دن پانی بڑا مایوس تھا، پانی بڑا مایوس تھا، دودھ سے آ کر کہا یار تو بھی پیا جاتا ہے میں بھی پیا جاتا ہوں، لیکن مجھے لوگ بغیر قیمت کے پیتے ہیں اور تجھے خرید کے پیتے ہیں۔ تیری قیمت زیادہ ہے، میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے، حالانکہ میں نہ رہوں تو لوگ مر جائیں گے اور تو رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نہیں؟ پانی کی اہمیت سمجھیں، اس کا بھی حساب دینا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دھرلے سے پانی گراتے رہتے ہیں، حساب دینا پڑے گا سب کا۔ تو جب پانی نے کہا دودھ سے یار تیرا مقام الگ، تجھے لوگ پیسے سے خریدتے ہیں، کوئی 50 روپیہ لیٹر لیتا ہے، کوئی 60 روپیہ لیٹر لیتا ہے، اور مجھے تو بے مول لیتے ہیں، تیرا مقام بڑا عجیب ہے، تیرا مقام بڑا بلند ہے۔ دودھ نے سن لیا، خاموش رہا۔ ایک دن موقع مل گیا، ایک دن موقع، ایک منچلا تھا دودھ بیچتا تھا، منچلا تھا دودھ بیچتا تھا، اس نے کیا کیا 5 لیٹر دودھ ہے سوچا بڑھا دیں، 1 لیٹر پانی ملا دیا، 1 لیٹر پانی ملا دیا۔ اب دودھ کو موقع مل گیا، کہو میرے بھائی پانی صاحب اب تیرا کیا حال ہے، اب تیرا کیا حال ہے؟ پانی نے کہا جو تیرا وہ میرا، پانی نے کہا جو تیری حالت وہ میری حالت۔ کہا مطلب؟ کہا جتنی قیمت میں تو بکے گا اتنے میں بھی بکوں گا، اتنے میں میں بھی بکوں گا۔ تو پانی جب تک دودھ سے الگ تھا اس کی قیمت نہیں بڑھی، لیکن جب دودھ میں مل گیا قیمت بڑھ گئی۔ تو جب تک ہم ولیوں سے دور ہیں ہماری
तुम्हारी कोई कीमत नहीं, वलियों से जुड़ गए कीमत बढ़ अल्लाह वालों के करीब हो गए, कीमत बढ़ जाती है। क्या आपने देखा नहीं, हजरत मालिक बिन दिनार है, दहरिया से मुकाबला हुआ था, तो दहरिया से मुकाबले के वक्त यही तय हुआ था कि आग जलाई जाए, दहरिया भी हाथ डाले, मैं भी हाथ डालूं, जिसका हाथ जल जाएगा वो झूठा, जिसका हाथ बच जाएगा वो सच्चा है। आग जलाई गई, आग जलाई गई, दहरिया भी है, इमाम मालिक भी है, हजरत मालिक बिन दिनार भी है, आग जल रही है, हजरत मालिक बिन दिनार अपना हाथ डालते हैं, दहरिया भी अपना हाथ आग में डाल दिया। कुछ देर तक दोनों लोग अपने हाथ को रखे रहे, लेकिन जब निकाला गया तो न दहरिया का हाथ जला है, न वली कामिल का हाथ जला है। लोग हैरत में है, क्या दोनों हक पर हैं, क्या दोनों सदाकत पे हैं, क्या दोनों सही रास्ते पर हैं। हजरत मालिक बिन दिनार रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला मैं तेरा मानने वाला, दहरिया तेरा इनकार करने वाला, मैं तेरी इबादत करने वाला, दहरिया तेरा इनकार करने वाला, मैं तेरे खौफ को दिल में बसाने वाला, दहरिया तेरा इनकार करने वाला, मैं तकवा वाला, दहरिया इनकार वाला, मैं तहारत वाला, दहरिया इनकार वाला। मौला उसके हाथ को आग क्यों नहीं जलाई? आवाज आती है, मेरे मालिक, ए मालिक बिन दिनार सुन ले, अगर आग ने उसके हाथ को नहीं जलाया कि उसका कमाल नहीं, तेरे हाथों का कमाल है, तेरे हाथों का कमाल है, ये तेरे हाथ की बरकत है, ये तेरे हाथ की बरकत है कि अल्लाह वाले के हाथ के साथ अगर किसी दहरिया का हाथ आग में पड़ जाए तो दुनिया की आग नहीं जलाती, और जब मर्दे मोमिन के आग में चला जाए तो जहन्नम की आग फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम।